Hello students, hope you are all fine and watch the video 1 and 2 in which I have discussed about introduction of chapter light and image formation by concave mirror. In this video I will include rules for obtaining images by convex mirror, image formation by convex mirror, uses of convex mirror and sign convention. Sign convention is very important for the numerical purpose. Okay? Now I will start by the rules. Four rules are parallel ray. Case of convex mirror, bulging out is the reflecting surface. Parallel ray, it will appear to diverge from focus. Focus से हमें diverge होती हुई लगेगी. So इसमें बच्चों ये इसका normal मैंने draw किया from the center of curvature. This is angle I and this is angle R. If second rule is, if a ray of light is going to meet to the focus, appear to meet with the focus, then after reflection it will become parallel. देखो इस फिगर और इस फिगर में एरोज ही चेंज हैं, तो फिर एंगल आई और एंगल आर का भी ध्यान रखना है. अदरवाइज तो सुपरफिशियली देखेंगे तो एक सा लगता है कई बच्चों को ये, लेकिन ये डिफरेंट है. नॉर्मल इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर. इस केस में ये एंगल आई था, ये एंगल आर है. एंड द थर्ड रूल इज, इफ अ रे ऑफ लाइट, कभी कभी ऐसा जाता है कंप्लीट द रेड आइलैंड is going to meet to the center of curvature. Center of curvature के towards जाती हुई लग रही है, then it will पूछ लेंगे इस complete करो इसको ray diagram को. केवल देखो क्या करना है, केवल एक arrow लगाना है because it is falling normally at this point. So normally fall हो रही है, angle I and angle R are 0, so it will retrace its path. Fourth rule is, if obliquely fall हो रही है, so making angle I with the principal axis, so reflect होगी obliquely, so that angle I equals to angle R. Now I will start the image formation. These are the four ये rules को learn करना है, तभी image formation by convex mirror हम लोग कर पाएंगे. If object is infinity, first case is, then image formed कहाँ form होती है? If object is infinity, parallel rays appear to be diverged from focus. So image form होगी at focus, virtual and erect and highly diminished. Second is, if the object is in between pole and infinity, anywhere, कहीं भी रख दें pole and infinity के बीच में, तो parallel ray appear to be diverged from focus. A ray going to meet towards center of curvature, it will retrace its path. तो कैसी इमेज फॉर्म हुई है? Diminished, in between P and F, virtual and erect. So whatever be the position of the object in front of convex mirror, always image form is virtual and erect. Virtual and erect images are forming, and कैसी फॉर्म होती है? हमेशा ही diminished होती है. और कहाँ फॉर्म होती है? बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है. वर्चुअल इमेजेस मिरर के केसेस में बिहाइंड द मिरर ही बनती हैं, और जो रियल इमेजेस हैं वो फ्रंट में बनती हैं. अब यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? ये रियर व्यू मिरर में यूज होता है. ये यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन जनरली ऐसे पूछता है, व्हाई द कॉन्वेक्स मिरर इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर. सो दो इसके रीजन है, बिकॉज it is always forming erect and virtual images. So ट्रैफिक है पीछे हमारे रियर व्यू मिरर में, वो सीधा ही नजर आएगा. As diminished images are forming, so wider field of view हमें convex mirror की हेल्प से मिलता है. So convex mirror को यूज किया गया है as a rear view mirror. ठीक है. इसके अलावा स्ट्रीट लाइट में इसे यूज किया जाता है टू डाइवर्स द लाइट, ज़्यादा रेंज तक लाइट जाए इसलिए. और इसके अलावा शॉपकीपर्स ने इसको ऐसी जगह लगाया होता है जहाँ से शॉप का पूरा व्यू उसमें आ जाए, थेफ्ट को प्रिवेंट करने के लिए. ये कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हैं. नेक्स्ट, नाउ आई विल डिस्कस विद यू द साइन कन्वेंशंस. साइन कन्वेंशंस में एक तो ये ट्रेंड है, कोई भी मिरर है
ऑब्जेक्ट का जो ट्रेंड है वो लेफ्ट में रखने का ट्रेंड है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऑलवेज लिखा जाता है यू से, अपनी मर्जी से तुम लोग चेंज मत करना कभी। इमेज डिस्टेंस को रखा जाता है विथ वी, तो इनको वी को ऐसे ड्रॉ करो, इसको ऐसे, जिससे डिफ्रेंशिएट हो सके। फोकल लेंथ इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, फोकस को डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से एंड फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से करते हैं बच्चों। सो ये है, और एक और है ऑब्जेक्ट हाइट को, मेरा सजेशन है कि तुम लोग ऑब्जेक्ट की हाइट को एच ओ से डिनोट करो एंड इमेज की हाइट को डिनोट करो एच आई से, इससे कंफ्यूजन नहीं हो कि कौन सा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और कौन सा इमेज की हाइट होती है। अब इंसिडेंट रे ऑलवेज लेफ्ट से आ रही है, तो इफ सारे डिस्टेंसेस को हमें पोल से मेजर करना है। इफ इमेज इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर, सो ये इमेज डिस्टेंस है, इसे हम वी से डिनोट कर रहे हैं। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही मेजर कर रहे हैं डिस्टेंसेस को, सो पॉजिटिव लिए जाते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, और अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर करे जा रहे हैं डिस्टेंसेस, तो हम उसे हमेशा लेते हैं नेगेटिव में। ये साइन कन्वेंशन है। इसकी फोकस कॉनकेव मिरर का फ्रंट में होता है, सो इसकी फोकल लेंथ कैसी आई, फ्रंट में है, सो फोकल लेंथ इज इन नेगेटिव। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर लेती तो उसमें क्या होता, प्रिंसिपल फोकस इज इन बिहाइंड, यहाँ है, तो जो फोकल लेंथ है वो कैसी होती, फोकल लेंथ होती पॉजिटिव। इसका मतलब है कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है एंड कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। U इज ऑलवेज नेगेटिव, ये तो हमेशा ही नेगेटिव निकल कर आएगा। फिर वर्टिकल डिस्टेंसेस, अगर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं तो नेगेटिव लिए जाते हैं। मिरर फॉर्मूला कौन सा है जो तुम्हें यूज करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और एक और है जो याद रखना है मैग्निफिकेशन के लिए, m इज इक्वल टू hi/ho। नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, m इज इक्वल टू -v/u। डेरिवेशंस आर नॉट इन योर कोर्स, ये इसके इक्वल भी है और ये इसके भी, तो hi/ho इज इक्वल टू -v/u। इफ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इफ m की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, it means image is real and inverted. If m की value is more than 1 है, image is enlarged. If value of m is equal to 1, it means hi equals to ho. If m is less than 1, it means image is diminished. So बच्चों, ये जो हमने आज डिस्कस किया है, ये सब तुम लोग को न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। आई विल रिपीट इट अगेन। अगर ऐसे भी हम याद रख सकते हैं कि मिरर या लेंस के केस में दोनों तरह में सेम ही है। इफ हम पीछे के डिस्टेंसेस दे रहे हैं, लेंस और मिरर के पीछे के डिस्टेंसेस दे रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो आते हैं पॉजिटिव, और लेंस और मिरर के सामने हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं तो आते हैं नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वर्टिकल डिस्टेंसेस ले रहे हैं तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वर्टिकल डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के एंड में मैं एक दिन डिस्कस करूंगी बच्चों तुम्हारे साथ। सो की मीनवाइल लर्न इट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके बच्चों, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।